So, hello everyone. We're going to start the class and we're going to study now the Indian Contract Act 1872. And in the previous class, we have already discussed the interpretation clause, section 2 of the Indian Contract Act, under which we have already completed the portions like what is the proposal, what is the how the proposal becomes a promise, and how the promise becomes an agreement, and how an agreement becomes a contract. So, according to Section 2H of the Indian Contract Act, we have already studied an agreement which is enforceable by the court of law. That is a contract. All right. So when coming to the next part of the contract, we have also studied the communication, acceptance, and the revocation of the proposals. When we have studied about the communication of the proposal, the revocation of the proposal, or the acceptance of the proposal, at that time, at the time of the communication of the proposal, we have already discussed that communication means transferring the information from one person to another person, right? For example, if I am having something in my mind, मान लो में ये है कि मैं आपसे कुछ सामान खरीदना चाहती हूँ, बट आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू टू यू. मैंने अपना दिल का बात आपके सामने कम्युनिकेट किया ही नहीं. देन डू यू थिंक द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओवर हियर? द आंसर इज नो. The communication is not complete until and unless there is the transfer of the emotions, there is the transfer of the words from one person to the another person. मैं अपने दिमाग में मैं सोच लूं कि मेरे को ये जमीन खरीदना है, मेरे को इससे ये काम करना है. सो दिस इज नॉट द वे टू कम्युनिकेट if I just only think in my mind and I am not expressing it to you. So when the communication completes, when it comes to the knowledge of the person to whom the thing need to be communicated. मेरे को जिसको ये बात कम्युनिकेट करना चाहिए, जब मैं अपने तरफ से अपना बात सामने वाला को कम्युनिकेट कर बता, the front person gets to know about my intention, the front person gets to know what I want, then that is called the proper communication. जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक बार उसका नॉलेज पे आ जाए, हम जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक बार वो बात उसका नॉलेज पे तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट. ऑलराइट. एंड अबाउट द एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट. मैंने आपको एक प्रपोजल दिया कि चलिए मैं आपसे ये सामान खरीदना चाहती हूँ, कि आपका ये हेल्प करना चाहती हूँ, आपसे ये चीज लेना चाहती हूँ, या फिर आपसे ये आपको ये, तो व्हाट एवर इट इज दैट इज माई प्रपोजल. ऑलराइट. सो दिस इज अपन यू कि आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. This is completely upon you that you are going to accept my proposal or you are going to reject my proposal. So this is called the acceptance or the rejection of the proposal. Rejection means the revocation. रिवोक करना का मतलब ये होता, रिवोकेशन का मतलब ये होता है कि आप मना करते हो, यू जस्ट डिनाई कि नहीं मेरे को ये करना है. So when there is a proposal from my side to you, जब मैं आपको कुछ भी चीज का proposal and वो चीज आपको accept, then that is called the acceptance. You accept my proposal, and after acceptance of the proposal, a proposal becomes a promise. जिस बात को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं. When a proposal becomes promise, when a proposal is being accepted by someone to whom the proposal is made, then it is called that it becomes a promise to each other. And when the promise is added with the compensation, that becomes an agreement. जब प्रॉमिस के तरफ से, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को प्रॉमिस करते हो कि हाँ मैं अगर आपसे ये जमीन खरीद रही हूँ तो आपको मैं 10 लाख रुपया दे दूंगी. लाइक द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 10 लाख रुपीज एंड आई एम गोइंग टू पे यू 10 लाख रुपीज इफ आई एम गोइंग टू बाय द लैंड फ्रॉम यू. एंड इन द सेम वे यू आर प्रॉमिसिंग मी कि हाँ ठीक है, अगर आप मुझे 10 लाख रुपया दे रहे हो, देन आई एम गोइंग टू सेल द लैंड टू यू. सो इन दिस केस दिस इज कॉल्ड ए कंप्लीट प्रॉमिस टू ईच अदर. मैं आपको कुछ वादा करती हूँ, आप मुझे कुछ वापस वादा करते हैं. When there is the performance
ऑफ द कंसिडरेशन। यहाँ पे अगर कंसिडरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या हो, मैं अगर आपको 10 लाख रुपया दे रही हूँ इन रिटर्न ऑफ द लैंड, तो 10 लाख रुपए का कंसिडरेशन मेरे लिए क्या है, जमीन है, द लैंड विच आई एम गेटिंग द ओनरशिप। अगर आप अपना ओनरशिप मेरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, इफ यू आर सेलिंग योर लैंड, if you are transferring your ownership, if you are selling your ownership to some other person or to me, then in that case, what is your compensation? आपका, sorry, what is your consideration? Sorry, this is the consideration, not compensation. So what is your consideration? Your consideration is the 10 lakh of the rupees. 10 लाख रुपया ये आपका consideration है. So this is the theory. समझ में आया? Consideration means किसी के बदले कुछ देना। आप दुकान जाते हो, सामान खरीदते हो, 10 रुपए का आप मान लीजिए एक बिस्किट लिया, उसको आपने 10 रुपया वहां पे दे दिया। So here the rupees of the 10 rupees which you pay to the shopkeeper, that is called the consideration amount. यहाँ पे मेरा 10 रुपए के बदले दुकानदार मुझे एक बिस्किट दिया और मैं बिस्किट के बदले उसको क्या दिया, 10 रुपया दिया। So here this is the consideration for each other. अगर वो मुझे बिस्किट दे रहा है तो उसके कंसिडरेशन पे मैं उसको 10 रुपया दे रही हूँ। The price of the biscuit I am giving to the shopkeeper. Got it? So here this is all about the consideration, जहाँ पे हमने ये बात करते हैं कि जहाँ पे प्रोमिज is associated with the consideration, एक दूसरे को कुछ कंसिडरेशन देने की प्रोमिज करते हैं एंड वो कंसिडरेशन इम्प्लीमेंट, देन दैट बिकम्स एन एग्रीमेंट। जब आपने मेरे को जमीन देने का प्रॉमिस कर लिया और मैंने भी आपको वापस में जमीन के बदले 10 लाख रुपया देने का वादा कर लिया, प्रॉमिस कर लिया, देन दैट प्रॉमिस टू ईच अदर बिकेम व्हाट, बिकेम एन एग्रीमेंट, है ना। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड, जब एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर ही लिया कि हाँ ठीक है हमको नहीं या बेचना है, कुछ भी करना, व्हेन दैट एग्रीमेंट is legally enforceable by the court of law, when उस एग्रीमेंट को लीगली कोर्ट ऑफ लॉ में एसोसिएट किया जा सकता है, when there is the presence of the lawful object and when there is the presence of the lawful consideration, then the agreement becomes a contract. So moreover, a contract is an agreement that is enforceable by the court of law according to the section 2H of the Indian Contract Act, which says an agreement which is enforceable by the court of law. ऐसा एग्रीमेंट जिसको लीगली एनफोर्सेबल किया जा सकता है, that kind of agreement when enforceable in the court of law is called a contract. Clear? So we have also studied about the section 3 of the Indian Contract Act, जहाँ पे हमने बात किया था acceptance and revocation of the proposal के बारे में, and communication when complete, communication of the acceptance and communication of the revocation उस बात किया था. So now we are going to study the revocation of proposal and acceptance, section 5. So here it speaks that a proposal may be revoked. वहां पे हमने एक्सेप्टेंस का बात पढ़ी थी, तो यहाँ पे हम आते हैं रिवोकेशन करने। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल रही हूँ कि चलिए मैडम हमें आपसे जो जमीन है वो जमीन को 5 एंड इन रिटर्न आई एम गोइंग टू पे यू 10 लाख ऑफ द रुपीज। तो वहां पे आप एक्सेप्टेंस करने के बजाय आप मुझे मना कर देते हैं कि नहीं मैं अपना जमीन दे, या फिर मान लीजिए आप पहले मेरे को हाँ बोल दिए थे कि हाँ ठीक है मैं अपना जमीन देने को तैयार हूँ, फिर आपका दिमाग में क्या आता है, आप बोलते हैं कि नहीं 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 मैंने पहले हाँ बोल दिया कर रही हूँ, अब मैं अपना जमीन बेचना नहीं चाहती हूँ। सो इन दिस केस इफ यू आस्क मी लाइक व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशंस ओवर हियर, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिवोकेशन की, तो यू कैन आस्क मी दैट रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ओके। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, मान लीजिए चलिए दो एक होता है रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल
एंड दूसरा होता है रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये बात बोला कि चलिए मैं आपको प्रपोज करती हूँ कि मैं आपसे आपका 5 एकड़ का जमीन खरीदना चाहती हूँ। आप मुझे बोल देते कि मैम ठीक है, आप ले लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ? एग्रीमेंट हो गया, प्रॉमिस हो गया। आप मुझे जमीन देंगे, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी। बट मान लीजिए, थोड़ा सिचुएशन को ट्विस्ट कीजिए, जहाँ पे ये सिचुएशन आता है जहाँ पे मैम वॉइस नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, so what I was telling, there is a two things. First is the revocation of the proposal and second one is the revocation of the acceptance. Okay. So when we're talking about the revocation of the proposal, situation थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए। क्या होता है कि मैंने पहले आपको बोल देती हूँ जाके कि सर मैं आपसे आपका घर खरीदना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका दिल्ली पे एक बहुत बड़ा सा घर है जो घर मैं खरीदना चाहती हूँ विद द 5 करोड़, 5 करोड़। ओके, तो मैं यहाँ पे आपके सामने जाके प्रपोजल रखती हूँ कि देखिए आप अपना घर मुझे बेच दीजिए। बट उसके बाद मेरे को दूसरा एक जगह पे उसी से भी कम पैसे में अच्छा वाला घर मिल जाता है, तो इट इज ऑब्वियसली जस्टिफाई कि मैं आपसे नहीं चाहूंगी, क्योंकि मेरे को अगर कम पैसे में अच्छी जगह में घर मिल रहा है तो बहुत फॉर श्योर की बात है, तो मैं आपसे घर क्यों खरीदूं? नहीं ना दूंगी कि नहीं, मैं आपका घर खरीदना नहीं चाहती। तो यहाँ पे when I have made a proposal to you कि हाँ मैं आपका घर खरीदना चाहती हूँ, क्या आप अपना घर मुझे देने के लिए तैयार हैं? That was a proposal to you, yes. बट एट द नेक्स्ट मोमेंट जब मैं घर मिल जाती हूँ, आपको जाके डिनाई कर देती हूँ, मना कर देती हूँ कि नहीं, मैंने आपको जो प्रपोजल दिया था ना कि मैं आपसे घर खरीदना, वो प्रपोजल मेरे को दूसरे जगह पे कम पैसे में घर मिलता है, सो आई डोंट वांट टू बाय योर हाउस। दैट इज द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, जहां पे आप कुछ प्रपोज करते हो, आप कुछ बताते हो, एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट जब आपको रियलाइज होता है कि नहीं ये चीज मेरे को नहीं चाहिए, देन यू रिवोक, आप मना कर देते हो, आप खुद से वो प्रपोजल को डिनाई कर, दैट इज कॉल्ड द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, राइट? When we're talking about the acceptance, that means, फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे कुछ चीज प्रपोज कर दिया, तो दैट इज अपन मी दैट आई शुड एक्सेप्ट दैट और नॉट। मान लीजिए आप मेरा घर खरीदना चाहते हैं, यू आर कमिंग टू मी एंड यू आर प्रपोजिंग मी, यू आर रिक्वेस्टिंग मी कि हाँ मैम आप अपना घर मुझे बेच दीजिए। बट आफ्टर लिसनिंग योर प्रपोजल, आफ्टर लिसनिंग योर प्राइस स्ट्रक्चर, 5 करोड़ में आप मेरे को अपना घर दे, तो दिस इज अपन मी, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 5 करोड़ में वो घर बेचना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ। दैट इज टोटली अपन मी, है ना? सो दिस इज द एक्सेप्टेंस। अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है मैं घर खरीदना चाहती हूँ, ओके, वहां पे मैंने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, गिव मी 1 मिनट, देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइज हियर। यस, and what do you understand by the revocation of the acceptance? Revocation of the acceptance ये होता है जब मैं आपको बोल देती हूँ कि हाँ ठीक है मैं आपसे आपका घर खरीदना चाहती हूँ, बट एट द नेक्स्ट मोमेंट मेरे को ये चीज का रियलाइज होता है कि नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आई वाज टोटली मिस्टेकन विद द कंफ्यूजन। पहले मैंने क्या बोला था? रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, जहां पे मैं आप मुझे बेचना चाहते हैं, वहां पे आप अगर कि हाँ मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ, तो वहां के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पर जब मैं आपको प्रपोज करती हूँ कि हाँ ठीक है क्या आप अपना घर देते हैं, बट एट द नेक्स्ट मोमेंट जैसे कि मैंने बोला मेरे को दूसरा कहीं पे अच्छे प्राइस पे, उससे कम प्राइस में घर मिल जाता है, एंड नाउ आई डोंट वांट टू बाय योर हाउस, दैट इज कॉल्ड द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। मैंने पहले आपको प्रपोजल दे दिया था कि चलिए मैं आपका घर खरीदना चाहती हूँ, बट एट द नेक्स्ट मोमेंट आई डोंट वांट टू बाय द हाउस एंड आई अगेन टेलिंग यू कि नहीं, नाउ आई एम रिवोकिंग माय प्रपोजल। मैंने घर खरीदना था बट अभी मुझे घर नहीं खरीदना है, एंड आई एम रिवोकिंग माय प्रपोजल। समझ में आया? व्हाट इज द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल? Coming to the next point, when we are talking about the revocation of the acceptance,
रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है? कोई चीज एक्सेप्ट करके फिर रिवोक करना। मान लीजिए वही एग्जांपल को चलिए, आपको मैंने प्रपोजल दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, आप मेरा घर खरीद सकते हो, यू एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, है ना, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस। बट आफ्टर आफ्टर यू से यस कि मैं अपना घर बेचना चाहती, यू सडनली रियलाइज नहीं बेचना चाहिए, इवन इफ यू सेड मी यस कि हाँ मैं घर बेचना चाहती हूँ, अगेन यू आर सेइंग मी ए बिग नो कि नहीं, अब मैं अपना घर बेचना नहीं चाहती, दैट इज कॉल्ड द रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। आप कोई चीज को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर चुके हो and again you are denying that, you are revoking that thing, that is called the revocation of the acceptance. Got it? So when we are talking about this revocation of the acceptance and the revocation of the proposal, so there are certain conditions over here. तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रपोजल कौन सा कंडीशन में डिनाई किया एंड एक द एक्सेप्टेंस कौन सा कंडीशन पे डिनाई किया जा सकता है। एंड कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जैसे कि वो कौन सा कंडीशन दैट हैज बीन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन, बात करते हैं अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 5। व्हेन वी आर कमिंग टू द पार्ट ऑफ द सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द फर्स्ट थिंग इट स्पीक्स a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposal but not afterwards। तो ये बोलता है कि जब एक प्रपोजल कोई प्रपोजल करता है तो प्रपोजल तभी डिनाई हो सकता है अगर द मतलब द प्रपोजल बिफोर गेटिंग कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रपोजल, एक प्रपोजल अगेंस्ट द प्रपोजल कब कंप्लीट होता है? जब सामने वाला का नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रपोजिंग यू दैट आई वांट टू बाय योर होम, तो वहां पे जब मैंने आपको ये बात बताया, प्रपोजल दिया, जब तक ये आपका नॉलेज पे नहीं आता तभी तक अगेंस्ट द प्रपोजल इज नॉट कंप्लीट, है ना। तो जब तक ये प्रपोजल कंप्लीट ना हो जाता अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द प्रपोजल, तब तक रिवोकेशन का पावर रहता है इन द हैंड ऑफ द प्रपोजल। समझ में आया? मतलब छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि there are two persons A and B, okay? For example, I am selling my house, okay? तो मैं अपना घर बेच रही हूँ। In that case, I have given a proposal to B कि देखिए B, मैं अब अपना घर बेचना चाहती हूँ, okay? तो मैंने क्या दिया कि चलो मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। वहां पे you are the person who is about to buy my house, whom I am going to sell my house. So now the question arises, my proposal जो कि मैं कब तक उसी को रिवोक कर सकती हूँ, and till when my power of revocation continues. My power of the revocation continues until and unless the front person keeps his acceptance towards the particular thing. Got it? तब तक सामने वाला वो घर खरीदने का कंसेंट मुझे पोस्ट ना कर देता, तब तक मैं उस घर बेचने का प्रपोजल को मतलब रिवोक कर सकती हूँ। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, आई एम स्टेइंग इन उड़ीसा, ओके, एंड यू वांट टू बाय योर होम, यू वांट टू सेल योर होम टू मी। आप अपना घर मुझे बेचना चाहते हैं विच इज सिचुएटेड इन उड़ीसा, ओके। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में डील हुआ कि 10 लाख रुपया में आप अपना घर मुझे बेच रहे हैं, ओके। बट आफ्टर डिसाइडिंग कि आपको अपना, आपने क्या किया, मुझे वो बात इन्फॉर्म भी कर दिया, कम्युनिकेट भी कर दिया, बट मेरे को आपने 2 दिन का वक्त दिया कि आप 2 दिन के अंदर अपना एक्सेप्टेंस मुझे भेजिए
through the mail or through the speed post or through any other medium. Alright. So यहाँ पे आप मुझे क्या करते हैं, पहले प्रपोजल भेजते हैं कि हाँ ठीक है, आप क्या मेरा घर खरीदना चाहते हो। दूसरा, आफ्टर सेंडिंग द प्रपोजल आपको रियलाइज होता है कि नहीं, आप अपना घर बेचना नहीं चाहते। सो द रेस्पॉन्स इज, जब तक जिस जिस टाइम तक मैं अपना एक्सेप्टेंस का लेटर आपको ना भेज देती, तब तक आपके पास डिनाई करने का सारा पावर रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे हाथ में देयर इज द 2 days ऑफ द टाइम, जिसी के अंदर मैं ये बात को डिसाइड करूंगी दैट आई शुड बाय योर होम और नॉट, मैं यहाँ घर चाहिए या नहीं चाहिए, ये बात मुझे 2 दिन के अंदर डिसाइड करके आपको बताना। तो व्हाट इज योर ड्यूटी ओवर हियर, बिफोर आई सेंड माई लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस, मैं हाँ बोलने से पहले ही आप अपना रिवोकेशन का लेटर भेज दीजिएगा मुझे। आप स्पीड पोस्ट कर लीजिएगा। अगर आपने आपका प्रपोजल नॉर्मल पोस्ट के थ्रू देते हैं तो आप चाहे तो आपका रिवोकेशन स्पीड पोस्ट के थ्रू कर दीजिए, ताकि मुझे इस बात का अंदाजा, इस बात का कि चलिए ये जो सामना वाला मुझे जमीन बेचकर दे रहा था ना, वो अभी मना कर रहा, दैट पर्सन इज डिनाइंग टू सेल हिज होम राइट नाउ। एंड with the same example, let us proceed to understand the revocation of the acceptance. So, what, according to the section 5 of the Indian Contract Act, it speaks that an acceptance may be revoked by any time before the communication of the acceptance is complete against the acceptor, but not the afterwards. Acceptance, when acceptance is revoked at any time before communication of the acceptance is against the acceptor but not, okay, इस बात को भी अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन पे वही बात कंटिन्यू करिए। ओके, यहाँ पे प्रपोजल का रिवोकेशन कब होता है, मैंने बताया जब तक सामने वाला अपना एक्सेप्टेंस का लेटर ना भेजे, तब तक आप अपना प्रपोजल डिनाई कर सकते हैं। अभी आते हैं एक्सेप्टेंस के पॉइंट पे। एक्सेप्टेंस के पॉइंट पे क्या होता है, मान लीजिए आप मुझे प्रपोज किए कि हाँ ठीक है, मेरा उड़ीसा में एक घर है, आप वो घर खरीद लीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, इतना चाहती हूँ। एंड बट एट द नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ, मेरे को ये चीज का रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे को अब तो घर नहीं खरीदना है। तो मैंने क्या किया था, आपको नॉर्मल पोस्ट पे, पोस्टल के थ्रू अपना लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस भेज दिया। नाउ दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय ड्यूटी टू लेट यू नो before the letter of acceptance reaches to you that I don't want to buy your house. Even if मैंने हाँ लिख के या फिर with the consent I have sent the letter, I have to find some other medium which is much quicker and much easier, जिसके थ्रू before the reaching of the letter of acceptance I can send my acceptance का बात पहुंचने से पहले रिवोकेशन का बात उनके पास इन फ्रंट ऑफ द प्रपोजल पहुंचना बहुत जरूरी होता है। गॉट इट। सो यहाँ पे जो एग्जांपल के रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। ऑलराइट, so then coming to the section 7, it speaks that acceptance must be absolute and without any condition. Absolute का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मुझे कोई भी चीज एक्सेप्ट करने के लिए दे रहे हैं, आप अगर कोई भी चीज मुझे प्रपोज कर रहे हैं, इफ आई एम एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. That means that should not be associated with any particular condition. That should be free from the condition. Got it? So this is the thing. And when we are talking about the absolutity, मतलब जो कि जेन्युइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप और मेरे बीच में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट शुड बी जेन्युइन, दैट शुड बी ऑनेस्ट, दैट शुड बी ट्रूथफुल। आप और मेरे बीच में कोई भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए, वो जेन्युइन होना चाहिए, वो ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है।
there must be the presence of the transparency between you and me while doing a contract or while doing a certain agreement. Got it? सो रिवोकेशन के बारे में हमने दो चीज पढ़ा. आप आई थिंक आप लोगों ने ये बात भूलेंगे नहीं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. रिवोकेशन तभी कंप्लीट होता है अगेंस्ट द प्रपोजल जब रिवोकेशन जब जब when it completes against the proposal. मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो देयर आर टू पर्संस ए एंड बी. ओके, ए अपना जमीन बी को बेच रहा है या फिर ए अपना घर बी को बेच रहा है. ओके, ए हैज प्रपोज्ड बी, क्या आप मेरा घर खरीदना चाहते हो? बट आफ्टर गिविंग द प्रपोजल टू बी कि बी क्या मेरा क्या आपने ए रियलाइजेस कि नहीं बेच रहा, तभी ए ने क्या करता है, सेंड्स द लेटर ऑफ द रिवोकेशन, जहां पे सेंड करता है कि नहीं बी, मैंने आपको जो घर बेचने का बात की थी, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इट एनीमोर, मैं अब मेरा घर बेचना नहीं चाहता. गॉट इट? सो when A has the power to deny his proposal, to revoke his proposal, जब तक B अपना कंसेंट ना भेज दे. आप मेरे को अपना घर बेचना चाहते हो, आपने प्रपोजल दे दिया, जब तक मैं अपना या फिर एक्सेप्टेंस आपको ना भेज दूं या फिर मेरा एक्सेप्टेंस आपको कन्वे ना करूं, तब तक आपके हाथ में टाइम है. बिफोर getting my acceptance from you, before sending up my acceptance to you towards the proposal, you have all right to deny your proposal that I don't want to propose this thing to you. अब मैं नहीं चाहती. Got it? But कब तक हो सकता है? जब तक मैं अपना या एक्सेप्टेंस आपको ना भेज दूं, जब तक मैं अपना कंसेंट आपको ना बता दूं कि हाँ मैं आपका घर खरीदना चाहती हूँ, जब तक मैं हाँ ना बोल दूं, उसी तक, मेरा हाँ बोलने से पहले आप मुझे अपना प्रपोजल डिनाई कर सकते हैं. एंड अबाउट द रिवोकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ये बात बोला जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई हैव सेंट यू एन एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं आपका घर खरीदना चाहती हूँ, यू हैव गिवन मी अ प्रपोजल, I have accepted it. But after sending the acceptance, मेरे को realize होता है कि नहीं, मेरा घर खरीदना ही नहीं था. So after sending my acceptance, before it reaches to you, ये आपके पास पहुंचने से पहले ही मेरे को अपना रिवोकेशन पहले भेजना पड़ेगा. एंड अगर रिवोकेशन पहले पहुंच जाता है आपके पास, then that acceptance is called to be revoked. Got it? जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्री कर दिया एंड आई हैव सेंट यू माय लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द नॉर्मल पोस्टल. ओके, बट तभी मेरे को रियलाइज होता है कि नहीं, देन व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेंडिंग यू ए स्पीड पोस्ट और टेलीग्राम और जीमेल, और आई एम गिविंग यू ए फोन कॉल एंड टेलिंग यू जी भैया देखिए मैं आपसे जो घर खरीदना के लिए हाँ बोल रही थी, I have sent you the letter of acceptance, but now I am denying it. I hope कि acceptance आपके पास पहुंचा नहीं है. जब तक मेरा acceptance आपके पास ना पहुंच जाता, आपके नॉलेज पे नहीं आ जाता, तब तक I have the right to deny my acceptance towards the particular object or towards the particular. Got it? Clear? Now, as we have discussed, acceptance must be absolute, unqualified. ये बात हमने पढ़ा. According to Section 8, acceptance by performing conditions or receiving consideration. Got it? Okay. यहाँ पे ये जो acceptance of the proposal होता है ना, that is not always through the verbal communication or telephonic communication or through sending a message or via doing any kind of मतलब postal communication और telegram communication. मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आप मुझे अपना बोला कि आप मुझे एक लेटर भेजा जहाँ पे आपने ये मेंशन किया था कि क्या आप मेरा घर खरीदना चाहते हैं.
यहाँ पे मैं आपको ये लिख के मेंशन करूंगी कि हाँ मैं आपका घर खरीदना, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, राइट? क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन टाइम। या फिर आप मुझे लेटर भेजने के अलावा एक टेलीफोनिक कॉल के थ्रू भी आपका प्रपोजल बता सकते हैं कि देखिए मैडम, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरा एक ऐसा एक जमीन है, ऐसा एक घर है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। इट माइट बी एनी काइंड ऑफ मीडियम। तो बिसाइड्स दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे तरफ का कम्युनिकेशन भी होता है। ओके, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप मुझे कोई प्रपोजल नहीं दी, यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको प्रपोजल देती हूँ। ओके, कि सर देखिए, आपका इस जगह पे जो दुकान है वो दुकान मैं खरीदना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बाय दैट हाउस टोटली, पूरा दुकान ही खरीद लेना चाहती हूँ। एंड इन रिटर्न आई वॉन्ट टू पे यू 10 करोड़ ऑफ द रुपीज। उसी के बदले मैं आपको 10 करोड़ देने को तैयार हूँ, बट मैं आती हूँ दुकान खरीदना चाहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, along with my letter of the proposal, जहाँ पे मैं आपसे दुकान खरीदने का बात की हूँ, मैंने एक मतलब इट माइट बी मान लीजिए एक चेक है, एक चेक के थ्रू मैंने 10 करोड़ रुपया आपको सैंक्शन करके भेज दिया कि चलिए, अगर आप मुझे अपना दुकान देने को तैयार है तो ये 10 करोड़ रुपया एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड तो यहाँ पे देर इज नो नीड ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, देर इज द वेरी सिंपल थिंग। मैंने आपको प्रपोजल के बाद साथ साथ पैसा भी भेज दिया, और मैंने आपको ये बोला, अगर आप वो 10 करोड़ का चेक एक्सेप्ट करते, अगर आप वो 10 करोड़ बैंक से विड्रॉ करते हो, दैट मीन्स मैं ये मान कि हाँ, आप मेरा प्रस्ताव को मान लिया है एंड यू आर रेडी टू सेल योर स्टॉक टू मी। गॉट इट? सो दिस इज द वेरी सिंपल थिंग ओवर हियर। यहाँ पे दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज नॉट ऑलवेज नीड टू बी थ्रू रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। इट माइट बी थ्रू एनी काइंड ऑफ एक्शन और थ्रू एक्सेप्टिंग द कंसिडरेशन। यहाँ पे जो 10 करोड़ का पैसा था, 10 करोड़ का ईमान, 10 करोड़ दुकान 10 करोड़ का पैसा दे रही हूँ, यू हैव एक्सेप्टेड दैट मनी। आपने वो पैसा, इसका मतलब क्या हुआ, यू एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं अपना दुकान बेचने को। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, जहाँ पे आप ओरल कंसिडरेशन नहीं दे रहे, आप कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे, यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ द रिटन एग्रीमेंट, बट यू आर डूइंग समथिंग, एक्सेप्टिंग ए कंसिडरेशन or doing any kind of activity which indicates your acceptance towards the proposal. दूसरा, any kind of activity मतलब it might be any kind of reciprocal promise हो सकता है, और एक काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन हो सकता है। दूसरा एक चीज मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी, जहाँ पे इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि चलिए मैं आपकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको ये बताती हूँ कि सर देखिए, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर रहती हूँ, आई एम स्टेइंग एट लंदन, इंडिया। ओके, तो इंडिया पे मेरा जो घर है, मेरा जो जमीन है, मैं उसका देखभाल करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहती हूँ। सो आई एम राइटिंग ए लेटर टू यू, जहाँ पे मैं ये मेंशन करती हूँ कि इस जगह पे मेरा ऐसा ऐसा घर है, तो मैं चाहती हूँ कि आप वहां पे जाए, मेरे घर का देखभाल करें, मेरे घर का सामान का ख्याल रखें, एंड इफ उसी के बदले उसका कंसिडरेशन क्या होगा, आप उस घर में आराम से रह सकते हैं जब तक मैं वहां पे ना आ जाऊं। तो हियर व्हाट इज द थिंग, यहाँ पे मैंने जो अपना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पैसा नहीं दे रही, बट व्हाट आई एम गिविंग टू यू इज आई एम अलाउइंग यू, आई एम परमिटिंग यू टू स्टे इन माई हाउस। मैं आपको बोलती हूँ कि आप जाइए मेरे घर, वहां पे बस घर का ख्याल रखिए, और आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, आप बस उसी घर पे रहिए और घर का ख्याल रखिए, राइट? सो हियर यू डोंट नीड टू सेंड मी बैक कि हाँ मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, ऐसा कुछ। मैं आपको लेटर पे, इफ यू एग्री ऑन द प्रपोजल
आप इस एड्रेस पे जाके पहुंच जाइए एंड स्टार्ट स्टेइंग इन द हाउस। आप मेरे को कुछ बोलते नहीं है बट आप उस घर में जाके, तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। यहाँ पे आपने जो एक्टिविटी किया, मैंने लेटर पे मैंने ये लिखा कि आप जाके उस घर पे रहिए एंड इन रिटर्न यू डोंट नीड टू पे मी एनीथिंग, आपको मेरे पड़ेगा, आप उस आराम से उस घर में रहिए और उस घर का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे आपने एक्सेप्ट कर लिया एंड यू स्टार्टेड लिविंग इन दैट हाउस। Here, your activity of staying in that house indicates that you have accepted my proposal. आज है ना? So this is the thing about the acceptance of the proposal. जहाँ पे ये बात साफ साफ समझ लीजिए कि हमेशा प्रपोजल का एक्सेप्टेंस ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं होता। It also can be happen through the acceptance of the consideration as well as the performance of certain kind of specific activity. आप जब दुकान जाते हैं, दुकान पे आप सामान खरीदते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब कोई चीज को एक्सेप्ट, जैसे कि आप दुकान एक 10 रुपए का वो 10 रुपए, तो क्या भैया कि हाँ मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपने मुझे प्रपोज किया, क्या आप मुझसे बिस्किट लेना चाहते हैं एंड आई एम एक्सेप्टिंग योर प्रपोजल, क्या भैया वो सब बोलते हैं दुकानदार भैया? नहीं बोलते। आपने उनको सीधा 10 रुपए, वो आपको बिस्किट देते हैं, काम खत्म। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसिडरेशन। आप बिस्किट ले रहे हैं, वो पैसा एक्सेप्ट कर लिए, दैट मीन्स he is agreeing with your conditions. This is the silent acceptance. The acceptance of the consideration amount or the performance of any certain kind of activity which is instructed in the agreement terms and conditions, that is also the acceptance of the proposal. And the last one, the section 9, it implies that the promises that can be expressed or implied. जैसे कि मैंने अभी अभी बात किया, हमेशा हर तरह का प्रोमिस एक्सप्रेस हो सकता, इम्प्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब व्हिच इज थ्रू द रिटेन और ओरल फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस पे कन्वर्ट हो जाता है, राइट। जैसे कि आप किया कि घर खरीदना चाहते हैं, मैंने बोला कि हाँ मैं खरीद, यहाँ पे जब आपका प्रपोजल में एक्सेप्ट कर लेती हूँ दैट बिकम्स ए प्रॉमिस, ओके। बट हमेशा दिस इज नॉट नेसेसरी कि प्रॉमिस शुड बी एट ए रिटन कंडीशन, दैट मीन्स दैट शुड बी एक्सप्रेस्ड मीन्स रिटेन, ओके। बट इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लाइड। जब मैं आपको साथ पेन पेपर पे आपके साथ एग्रीमेंट करती हूँ, वो क्या बन जाता है, that promise becomes the express promise. But जैसे कि मैंने बोला acceptance of the consideration और doing certain kind of activity, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं लंदन पे रहती हूँ, आप जाके मेरे घर पे रहना शुरू कीजिए एंड आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप जाके बस वहां पे रहिएगा। सो यू वेंट टू द हाउस एंड यू स्टार्टेड लिविंग देयर। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में एक प्रॉमिस बनता है कि नहीं, मैंने आपको प्रपोज किया कि आप जाके मेरे घर पे रहिए एंड यू एक्सेप्टेड माय प्रपोजल एंड यू स्टार्टेड लिविंग इन द हाउस। तो यहाँ पे मेरे हुआ है, देर इज नो कम्युनिकेशन ऑफ द वर्ड्स बिटवीन यू एंड मी, देर इज नो कम्युनिकेशन ऑफ द रिटन कमिटमेंट बिटवीन यू एंड मी। बट यहाँ पे द इम्प्लाइड एक्शन क्या हुआ, आपने आपका सामान लेके हो गए। So here the implied action also indicates the acceptance of the proposal, and this indicates an implied promise. Clear? So express promise means जहाँ पे आप रिटन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन थ्रू द वर्ड्स किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हो। इम्प्लाइड मीन्स आप एक्सप्रेस रिटन या ओरल, बल्कि आप कंसिडरेशन के थ्रू, पैसे के थ्रू, या फिर एनी काइंड ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस। जैसे कि मैंने बोला कि आपने लेटर भेजा, उस रेसिप्रोकल प्रोमिस में मैं आपका घर का ख्याल रखना शुरू किया। आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिस और आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज इंडिकेटिंग माय एक्सेप्टेंस। सो हियर this is also called a reciprocal promise, and this kind of promise is called the implied promise itself. Clear? So now we'll proceed to the chapter 2,
and this will continue from the next class. So till now we have understood what is proposal, what is promise, what is agreement, what is how the contract to be accepted, how the contract to be revoked, and what are the terms and conditions for the acceptance of the proposal, the revocation of the proposal. So these things we have already studied and understood. So the doubt would till section 10, you can just ask your question in the chat box or you can ask me in the next class. That is all for today, and after 10 to 15 minutes, we are going to start with the class of the Indian Constitution. Thank you. I'm leaving for right now, and I'll be joining next 10 minutes.